what we are going to solve here, first we are going to perform data pre-processing part for this Google Analytics inside the Python. Then we will check for the other part, like how we will deploy this, how we can solve this on the Power BI itself. All right. So how this data look like? Let me show this part. Google Play Store VS version 2.csv, and let me show Google. So inside the Google you will find Play Store, and this Play Store will have certain apps, Android apps, games, best selling, right? तो यहाँ पे जितने भी attributes है, like how many stars are there, ratings हैं, categories हैं, shopping, finance, communication, social, and their respective ratings. Similarly, what's the cost of this app if it is premium apps, productivity. So different aspects are there. So let me copy this part and go to the Power BI. So once I click my Power BI, so what's the role of Power BI? You have chance to get data from the web app. So I'll get the data set and go search for the web. It will ask the URL for the same. Along with this URL, I'll pass the Google Play Store का जो data set है. There are n number of, this is called web scraping, और there are n number of procedures where you can fetch website का जो पेज है उस पे जो डेटा सेट किसी भी टेबुलर फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, you can fetch into your Power BI for in order to create dashboard, in order to create data analytics, in order to create any information और कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए, right? Can you see it's a table number 1? We are going to review this word. Here we have column number 2, column number 3. जो भी यहाँ पे comment है Flipkart, comma, can you see this categories everything? Yes, sir. Right? तो ये टेबुलर डेटा सेट है, राइट? अगर मैं सेकंड टेबुलर देखूं तो ये दूसरा टेबल है, और तीसरा टेबल देखूं तो ये दूसरा टेबल, इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही अलग है, राइट? फिर नेक्स्ट कोई टेबल है तो वो उसमें अलग ही डेटा होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन माई वेब पोर्टल कि वहाँ पर ये डेटा सेट किस किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है. तो आई एम हैविंग टोटल 6 और 7 इसने इस वेब पेज से मुझे टेबल फैच होके आई है. अगर मैंने उस, देखो यहाँ पे जो स्टार है कितने उसके रेटिंग हो रखी है, राइट? अगर आप वेब व्यू देखना चाहते हो तो वेब व्यू इसका है. तो ये जो वेब पेज है, इस वेब पेज का जितना भी डेटा सेट है, जैसे आप वीडियो मेकर की ऐप देखो, या आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन की आप देखो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सबके ऐप का, सोनी लिव का, ओपेरा, सबके ऐप का जो टेबुलर फॉर्मेट है वो यहाँ पर है, राइट? तो सबसे पहले चैलेंजिंग ये होता है कि हमारे पास में जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की जो एल्गोरिथम होती हैं वो सारी टेबुलर फॉर्मेट में लगती हैं, बट हमारे पास जो मार्केट में डेटा सेट है वो दैट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट और सेमी स्ट्रक्चर. यू कैन सी ये जो डेटा सेट है ये इट्स काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर. अनस्ट्रक्चर प्योरली होता है व्हेन यू हैव वीडियो, इमेजेस एंड अदर फॉर्मेट, बट semi structure when you have CSV file, when you have JSON file, JavaScript object notation, when you have other formats in between structure and, or structure, what is this structure? Can you see this is the purely structure where you have certain rows and column. तो डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू कन्वर्ट दिस वेब ऐप, ये जो वेब पेजेस है उससे यूजिंग वेब स्क्रैपिंग और ब्यूटीफुल सोप और एनी अदर पाइथन लाइब्रेरी यू कैन फेच दिस डेटा सेट.
I had shown the procedure how you can get this data set. You can load this data set. Let's say this is the data set. I'm going to transform this data in my local machine. So this is the pipeline kind of where we have extracted data from the relevant web page, that is Play Store. That web page is just consisting certain comments and ratings, etc. Canva, Dairy app, fitness app. And now I can close and apply. You will find in the data pane, you will find all the tabular structure here. Taking time, in few seconds it will be there in my local machine. Now if you do not have any internet connection और कोई भी आपके पास इंटरनेट का आउटर बाउंड्री से कनेक्शन नहीं है, still you can perform your data analytics part. जो उसमें रिग्रेशन लगाना है या फोरकास्टिंग करना है या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की कोई भी एल्गो लगानी है, नाउ यू कैन डिप्लॉय योर एल्गोरिथम देयर. कैन यू सी here we have different multiple columns. If you want to create any, let's say, selected column chart, so I'm going to select this column 1 and this column 2. Right, so all these are non-categories values, so it's not going to show that value. So before extracting into the charts, we can rename the column so that Yes, sure, it will sure, be sure, better idea. sure, sure, sure. We can rename from here, like um, rename, like you can app, you can write it app comment. तो ये जो column है, ये app comment का है. You can define this thing. So this is the first operation. Okay. So this is the real aspect. If I'm going to like, let's say this is kind of data set. Can you see app category, ratings, review, size, installation? So I'm going to download this Google Play Store.csv. So going to select this one, go to the top, download, and here you have in the download section Google Play Store.csv. If you open this file, you will find this one. Inside the Excel sheet, you have current version, updated, generation. तो ये बहुत सारा डेटा सेट है. ये सारा का सारा यहाँ पर movies, entertainment, health and store, and everything there, right? So I'm going to close this one. Don't save. Back to my Power BI. Inside the Power BI, I'm going to get the data set. This time, this is in XCSV, not fetching from certain web page. So I'm going to navigate to my Google Play Store.csv. Finally, it will lead to my data pane where we'll have all these installs, type, price, you can see, right? So I'm going to transform this data set. That's it. So we have so many impurity in this data set. बहुत सारी impurity है इस data set में. So one by one, I'll have to remove this one. So either you can use the Python itself, or you can use the like this one, Power BI itself, right? So is Power BI method is a bit easier. Either you can use for this operations, right? So I'm going to firstly you can see this is part of ratings, right? यहाँ पर rating का column है, although Android version, sorry, but here we have end up, everything you can see. So what I'm going to deploy here, the first transformation I'm going to perform, this is called delimiter. Where is the delimiter? Split column using delimiter. You can find out from the right, drag right and go to the split column, and by delimiter you can go here.
or you can go for the transform and split. Can you see at the top under the home, not the home but the transform section, we have split column, and again all the options are same by delimiter. What's the illustration part of this delimiter? Once I'll click on this delimiter part, it will ask by space, by first और by कितने values के साथ में आपको करना है, right? तो you can use by delimiter और custom के साथ में भी कर सकते हो. Let's say आपने कोई string लिखा end, तो जहां जहां end लिखा है end up उसके basis पे ये क्या कर देगा, split कर देगा. Can you see? दिस एंड इज रिमूव्ड एंड जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यूज थी वो सारी की सारी नेक्स्ट कॉलम में पहुंच चुकी. बट दैट्स नॉट ओके, दैट्स फाइन. एंड आई कैन रिमूव दिस वैल्यूज, राइट, क्योंकि ये सारा एक ही वैल्यूज है, दैट्स नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, सो आई कैन रिमूव दिस कॉलम. आई कैन like remove this column. It's Android version 1. Let's keep it 1. You can see 4.0.3, that's fine. And you can see how many distincts we have. 21 distincts and 3 unique, right? So you can see like this is these total possibilities values. You can click on load more. So now you have varies with device and everything. Like अगर आपका Android version है, iOS version है, right? So it will divide, this version will depend upon this one. So this was the first impurity. Current version, last updated, or we have everyone. Can you see price? अच्छा हाँ, एक और चीज है. Can you see price here? So inside this price I'm having this select all and this one, right? So if I'm going to select none, so if it's going to select this one. So what I can do, I can go to the add and go to the convert format. Inside this format you can change this values, right? Or you can go for the standard and go for particular division, multiplication values and so on, right? That would be the price value. Or you can go for the type, what kind of type, free or paid. So we can see this one. As of now we have seen sufficient steps. I'm going close and apply, and within the close and apply I'm going to load my Play Store dataset. Okay, I think there is some error. Okay, no issue. We are going to ignore that. First, we are going to apply this category and this price. There is a problem. Yes. Can you see on the basis of category where we have categories and this relative graphs. If I'm going to seek this column chart, so this would be the array again. A column chart will be there, and this time I'm going to select size and this app values. Or oh, here we have app, all these app here. Can you see? Instead of app, if you want to select any other category, that's a content rating. So you can see everyone, teenage, every 10 plus, maturity, adults only, and unrated, every categories are showing here. It depends upon. So एक आपको categories value select करनी है, दूसरा आपको numerical value select करनी है. Let's say I'm selecting app and then I'll choose review this time. Will have respective category, or I can go for price. Not showing because we do not have right. So this is how we can create the dashboard and everything here. So we will come back here and let's move to the Python script where we have pre-processing part. Any doubt, any clarity till here? This script is passed to your another script also. Like this is the not only single one, right? This is the customized script. Sometimes you will have to pass to your web portal जहाँ पे आपके वेब बूट स्ट्रैपिंग होता है, नोड जेएस होता है, अदर कोडिंग जावा स्क्रिप्ट हो गया, वहां पे भी आपको ये प्री प्रोसेसिंग की पूरी हिस्ट्री पास करानी होती है. और
आपको क्लाउड में ये सारा चीजें ऑटोमेटिक पाइपलाइन क्रिएट करना होता है। आप क्लाउड में या रियल वर्ल्ड में यू कैन नॉट डू दीज मैनुअल प्रोसेस वन बाई वन, क्योंकि आप अभी देखो कि जैसे मैं आप चार लोग हो, मैं अभी एक को दे देता हूँ नेटफ्लिक्स का डेटा सेट, एक को मैं दे देता हूँ मान लीजिए एयरटेल का इंटरनेट का डेटा सेट, एक को दे देता हूँ आपके जो भी आपके कोडिंग स्क्वायर के जो इतनी भी कॉलिंग होती है उन सब का डेटा सेट, और एक को मैं कुछ और डेटा सेट दे देता हूँ। नाउ इफ यू विल आस्क मी टू परफॉर्म दिस डेटा प्री प्रोसेसिंग मैनुअली, तो इट विल टेक टाइम। तो coding, or when you will pass this script to your cloud, to your Node.js, to your Java script, to your bootstrapping, your manual work will not perform there. In Power BI, we are doing everything manually. In real world, we don't require human power. जैसे कि डेटा को कॉपी करके यूरोपियन कंट्रीज में जाना है, राइट, यूरोपियन लोकेशन पे भेजना है, और वहां पे कोई बंदा कॉलिंग कर रहा है, वो डेलिंग कॉलिंग करके आपके इस पे ला रहा है। व्हाट विल यू डू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगर 100 कॉलिंग का डेटा सेट है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 100 फाइल्स को आप कॉपी करके दूसरे लोकेशन पे अर्ली मॉर्निंग रोज यही काम करो? रोज सुबह उठ के आप यही काम करो कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज की लोकेशन पे है डेटा सेट, वो आप लोकेट करके अपनी लोकेशन पे लाओ। इज इट दी करेक्ट सोल्यूशन? हेलो? Yes, sir. पहले हमें सारा कॉपी करना पड़ेगा। ओके, नाउ फॉर दिस कंपनी जो रियल वर्ल्ड में आईटी कंपनी काम करती है, वो अलग ही तरीके से काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। एज्योर डेटा फैक्ट्री कॉपी कमांड। ये कॉपी कमांड जो है वो क्या करता है, कैन यू सी? हियर वी हैव सर्टेन स्टेप्स। आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट दिस पार्ट, बस एक आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हियर वी हैव कॉपी कमांड पाइपलाइनिंग इन डेटा फैक्ट्री और क्लाउड और एज्योर और वेब वेब सपोर्टिंग। वहां पर ये डेटा अपने आप पीछे से आता है और एक दूसरे लोकेशन पे कॉपी हो जाता है। दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन इनसाइड द क्लाउड और वेब होस्टिंग और सब सब जगह, राइट। वो कस्टमाइज डेटा सेटिंग, कोई वहां बंदा बैठ के नहीं कर रहा है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ऑटोमेटिकली एक फंक्शन इन्वोक होता है, और उस फंक्शन इन्वोक होने से जितना उस फोल्डर में डेटा अपडेट होगा, वो सारा का सारा आपके पावर बीआई में चला जाएगा, और वो डैशबोर्ड जितने भी होंगे ना, ये वाले जो ग्राफ्स हैं, वो सारे के सारे अर्ली मॉर्निंग अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉलिंग डेटा चेंज हो चुका है। डिड यू गेट माई पॉइंट? Okay, sir. राइट, दिस इज हाउ कंपनी वर्क्स। कंपनी कभी भी मैनुअल वर्क में काम नहीं करती है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप इस डेटा को मैनुअली देख रहे हो कि ये डेटा में कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा वो है। हियर वी डू ऑल दीज थिंग्स। आईटी कंपनी में वो क्या कहते हैं, आप एक ऐसा पाइपलाइन या ऐसी कोडिंग लिखो, वो कोडिंग सारे आपके कस्टमर्स के लिए काम में आए। क्योंकि हमारे पास अगर 426 है, जैसे मेरी कंपनी में ही 426 एलओबी है। एलओबी मतलब लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब क्लाइंट्स। अब मैं अगर सबके लिए ऐसे करने बैठ जाऊं, तो मुझे तो 426 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इसी काम के लिए रखने पड़ेंगे। तो कंपनी क्या बोलती है, एक ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करती है और बोलती है आप ऐसा स्क्रिप्ट लिखो जो सबके लिए काम आए, और वो तब उस स्क्रिप्ट में हमें काम आती है ये वाली पाइथन की स्क्रिप्ट। क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में मैन्युअली जा ही नहीं सकते। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? Yes, sir. राइट। Yes. जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स का डेटा सेट है, तो नेटफ्लिक्स में आप रोज अपना तमिल की मूवीज देखो, और शिनचैन की मूवी देखो। अगले टाइम वो रिकमेंड करेगा शिनचैन की कार्टून की मूवीज को। रीजन भी वहां पे ऐसा कोडिंग लिखा गया है, कोई भी बैठ के मैनुअल नहीं कर रहा है, राइट। दिस इज द रीजन वी राइट स्क्रिप्ट फॉर एवरीथिंग। हर चीज की हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैनुअली चीजों को अवॉइड करते हैं, बस टेस्टिंग करने के लिए हम वहां देखते हैं।
कि वो इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग हो रहा है सही या नहीं है, या कोई एडोबी क्लाइंट नया है हमारी कंपनी में तो उसका पैटर्न और रिक्वायरमेंट क्या है, बस उसके लिए हम पावर बीआई वगैरह सब यूज करते हैं, अदरवाइज हम मैन्युअली करते हैं। एक और चीज, व्हेन, फिर कि सर हम फिर इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आपके पास में होम पे आप जाओ, और होम पे आपके पास में ऑटोमेट, मॉडलिंग, व्यू और ट्रांसफॉर्म, कैन यू सी एडवांस एडिटर हियर। तो एडवांस एडिटर में भी क्या होता है, ये सारे स्टेप्स कोडिंग के बेस पे आते हैं, आप रियल वर्ल्ड में ये कोडिंग पास कराते हो, मैन्युअली वर्क आप नहीं करते हो। अब आप देखो जितने भी मैंने प्री प्रोसेसिंग में अभी पार्ट किए, उन सबको ये कोडिंग में कन्वर्ट बैकएंड में करता जा रहा है, करता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एम लैंग्वेज, ये एम लैंग्वेज है। तो पावर बीआई में भी ये कोडिंग होती है, वो इसीलिए ही है कि वो मैन्युअली वर्क को रिमूव करने के लिए। यस, डू वी हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। यस प्लीज गो अहेड। जो कोडिंग हम लिखेंगे पाइथन स्क्रिप्ट की, तो हम्म, वो ये डेटा सेट के लिए रहेगी। अब जो नेक्स्ट डेटा सेट आएगा न्यू, तो थोड़ा तो चेंज तो होगा ही ना सर उसमें। हाँ, डेफिनेटली चेंज होगा, बट इतना नहीं होगा। एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे आप उसको वो कर सकते हो कि वहां पे वो क्या है ये वो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एक वो लिखा कोड, जो कि दो इमेजेस को वो करता है, दो इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, राइट, क्लासिफिकेशन करता है कैट एंड डॉग को। तो आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, उसका पूरा रिसाइज कर दिया, है ना, उसका आप पूरा ब्लैक एंड व्हाइट भी कर रहे हो, उसका सब कुछ कर रहे हो, पूरा एल्गो लिख रहे हो। अब आप कैट एंड डॉग की जगह आप मेल और फीमेल का डेटा सेट डाल दो, विल इट चेंज नाउ? कोई चेंज आएगा? कुछ नहीं आएगा। आपने जो नहीं एल्गो नहीं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया है, चाहे आपने सीएसवी लगाया है, चाहे आपने एसवीएम लगाया है, चाहे डिसीजन ट्री लगाया है, चाहे सीएनएन लगाया है, चाहे डीप लर्निंग लगाया है, कोई भी एल्गो ने लगाई है, वो एज इट इज उस दोनों क्लास के लिए काम कर जाएगा। चाहे आप एक एप्पल और ऑरेंज का क्लास का इमेज डाल दो दोनों फोल्डर्स में, इट विल वर्क कॉन्करेंटली, राइट। अब मैं आपको शो करता हूं कि ये वाला जो स्क्रिप्ट है, पाइथन स्क्रिप्ट इन क्लाउड, ये क्लाउड में एज इट इज जैसा आप यहाँ पे क्लाउड पे सीखोगे ना, वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आगे चल के क्या होता है, वो क्लाउड में काम आएगा। अब आप देखो, ये मैं जो आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये क्लाउड के अंदर की है, मतलब चाहे एज्योर क्लाउड, चाहे जीसीपी, या आपके एडब्ल्यूएस क्लाउड, उनके अंदर आप अगर ये ध्यान से देखो कोड सेक्शन, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका पाइथन का कोड है। तो क्लाउड जो है पाइथन को भी एक्सेप्ट करता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले हम कैंडिडेट्स को ये सिखाते हैं कि ये वाला जो कोड है वो कैसे काम करता है। वंस यू नो ऑल दीज प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, तो आप ये सारी की सारी पूरी फाइल को उठा के आप क्लाउड में डाल दो। अब आपको वहां पे कुछ भी नहीं सीखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख के आए हो पीछे। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी फ्रेशर्स, कि वो एटलीस्ट कोड तो जाने कि उसका मीनिंग क्या है। कैन यू सी, ये एपीआई जो आपने सुना होगा, एपीआई, कितने लोगों ने एपीआई का नाम सुना Yes, sir. Yes, sir. है? राइट इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, ऑल थ्री। Yes. ओके, तो एपीआई भी सेम है, वो डेटा सेट से लेके आती है जेसन फॉर्मेट में, क्लाउड उसे ट्रिगर करता है और डेटाबेस से क्लिक करके वो, कैन यू सी पाइथन स्क्रिप्ट हियर, तो ये पाइथन स्क्रिप्ट यही होती है जो सारा काम करती है। अब मैंने कैट एंड डॉग की इमेज की जगह मैंने मैंने ऋषभ से बोला अपनी सारी इमेजेस मुझे दो एक फोल्डर में, ऋषभ त्यागी ने दे दी, नितिन वर्कुटे ने इन सेकंड फोल्डर में दे दी। अब मैंने वही स्क्रिप्ट को इन दोनों फोल्डर्स के ऊपर चला दिया, और मैंने एक बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए चलाया, विच इज सीकिंग फॉर रोहन एंड नितिन इमेजेस सेपरेटली। विल इट वर्क नाउ? 100% it will give the result for the same, यस सर। right? Now go back here. Any doubt further? I'm going to explain this file sheet.
Oh, और no. अगर कोई थोड़ा बहुत चेंज होता भी है तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो उस चेंज को वो करें और वो करके उसको आगे दें। एटलीस्ट 10% टाइम जाएगा रादर देन राइटिंग दी कोड फ्रॉम दी स्क्रैच। उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने में आपका एक दिन पूरा चला जाएगा, पूरा महीना नहीं जाएगा। लेकिन आप स्क्रैच से वो कोड लिखोगे तो पूरा महीना चला जाएगा। If you are going to modify the existing code, it will take hardly 1 or 2 days, not more than 1 or 2 days. So I had taken the Google Play Store here. This is in Pandas, NumPy, and I have imported this Google Play Store CSV. You can see read CSV just reading, and I am having this initially level पे कि मेरा जो App Store का data set है that's written over here. We have date, we have current version, Android version, everything, right? Now in the tail we have more other fields. 10,840 apps का data set है. We have all these data set here. Now I'm going to import shape. What's the shape? Rows, column, records and features. Sometimes we call it rows. Rows को हम records बोलते हैं ML की language में. Sometimes we call it columns and features. Columns को हम features बोलते हैं ML और deep learning की language when we are dealing with data analytics. So don't get confused with the features and records. They are synonyms to rows and column respectively. So here we have 13 columns and 10,841 app dataset for further analytics. Now let's get started with handling and cleaning part. Let's go for the no missing values, any incorrect data type or any incorrect data set. तो इनकरेक्ट डेटा का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत बड़ा डोमेन है. यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स द इनकरेक्ट डेटा सेट. इनकरेक्ट डेटा सेट डेटा मीन्स नंबर वन, wrong. You are trying to divide 25 divide by 0. अगर ऐसा आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा हुआ है which is illegal, invalid syntax, right? That will goes under incorrect data set. When you are writing date format such as 25 dot 1 dot 2023, is it correct data format? Date format, sorry, it's not data, date format. अगर आप कोई डेट लिख रहे हो और आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो 25.1.22325, is it correct date format? No. No, right? Contact number, I'm going to write this contact number 890 sign this one. Is it correct contact number? No. No, it should have 9 digits. Oh, sorry, 10 digits. Minimum or maximum 10 digits required here. Or you are writing something including +1 and this one 8061 this one. This is again wrong data set. You are including +91 which is not required, right? Or the incorrect data means you are writing Aadhaar card but still writing SSE, like you are writing BVPS 0169D. ये किसका फॉर्मेट है? ये जो मैंने अभी लिखा है आधार कार्ड के आगे, पैन कार्ड का. एग्जैक्टली. यू आर राइटिंग पैन कार्ड फॉर्मेट in the place of Aadhaar card. That's a wrong data. Definition of wrong data. Instead of PAN card, you are writing Aadhaar card format, right? तो ह्यूमन बीइंग के लिए ये रीड करना आसान है, बट कंप्यूटर के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है. Hence, it creates as a incorrect data set while performing all these operations. Now go back here. Let's see how many information, not null. We have very ratings. Most of the columns we have float values and missing. Ratings के बहुत सारी वैल्यू मिसिंग है, right? और कौन से मिसिंग है? करंट वर्जन मिसिंग है. ओनली 3, 4, 8 वैल्यूज मिसिंग है करंट वर्जन की. एंड्रॉइड की भी हमारे पास में 4 और 5 मिसिंग है.
so we will have this missing data set, right? So we have is null dot sum, so you can see 1474 missing है ratings का, which is alarming situation. Content rating का 1 value है, last current version 8, Android version 3. This is missing data set for us. Now we are decision makers कि हम इस rating का क्या करें और जो ये missing data है इसका क्या करें. So we will see one by one. Let's say we have removed, we have dropped. One solution is dropping the data set which is not available for you. So you can see if this rating is not very much important for you, और ये 1474 का डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो you can directly drop this one. Can you see here I am writing negation part and this input 0 dot rating dot is null. I am going to remove this one and creating input 1 as a new data frame. All right, so this will be the new data frame here. I'm going to write this one. Now going to store this one. Now I'm going to search is sum. Is sum means now ratings is not there because we have dropped all these null values from the ratings. तो अब जो उसका shape है वो भी कम हो चुका होगा. Previously we have 10,000 something. Now we have 9,367, right? You will have to ask your client कि मैं इस मिसिंग वैल्यू का क्या करूं. अगर वो आपको अवेलेबल करा देता है तब ठीक है, otherwise you can drop, or you have other solutions also, we will discuss in couple of minutes. अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, so kindly mention in SLA. What is SLA? Anyone? What is SLA? SLA is like agreement between cloud service and this one ensure minimum level of service is maintained, right? Or SLA in software engineer, software testing, service level agreement are specific goals that you define for your performance test, right? आप अपने क्लाइंट के साथ में एक एग्रीमेंट कर रहे हो कि ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट या ये कंस्ट्रेंट्स मैं लगा रहा हूं, तो दिस शुड बी मेंशन इन योर एसएलए कि है. मान लीजिए आपके क्लाइंट ने बोला मेरे को डेली में 10,000 रिकॉर्डिंग्स का डेटा चाहिए, उसके ऊपर डेटा नहीं चाहिए, बट योर वेब पोर्टल इज स्टोरिंग 15,000 डेटा सेट. अभी क्या होगा? कौन गलत हुआ? आप गलत हुए या क्लाइंट गलत हुआ? बाई सम कोडिंग मिस्टेक, कोई बैकग्राउंड कोडिंग की वजह से या कोई कंडीशन की वजह से आपने उसको 15,000 डेटा दे रहे हो, जबकि उसने बोला आपको 10,000 डेटा सेट देने का डेली का. हु इज रॉन्ग इन दिस केस? We, sir. We are wrong, right? Developer is wrong, right? So this should be mentioned in the SLA कि भैया हमारे बीच में 10, so your client will represent this SLA. We have 10,000 recorded and you are showing 15,000. This is the reason we have SLA. I'm going to count ratings for each value. 4.4 का इतना है, 4.1 का इतना है. Each individual rating is shown here, their value counts when you have particular column values, right? Categories, we have value count for this one. Library, comics, 1.9, beauty, education. We are good to go. Then is null again. Let me see. We have others. Counting ratings, current version, Android version. Those are null. Now I'm going to reprocessing or like sharpening this Android version. तो एंड्रॉइड वर्जन का मैंने देखा ओनली दिस 3 डेटा, ये 3 डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है. कैन यू गो स्क्रॉल राइट, विल फाइंड एंड्रॉइड वर्जन इज NAN which is not available for you. यहाँ पे कुछ वैल्यू होने चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव NAN here. Instead of NAN, here is the solution. Can you see? This is what 10,472. ये कुछ रोज को शिफ्टिंग हो गया है, right? Can you see? This is shifted on the left. फ्री यहाँ पर है तो यहाँ चला गया है, ये यहाँ पर है तो यहाँ चला गया है. इस तरीके से लेफ्ट में शिफ्टिंग हो गया है हर वैल्यूज का.
for 10,472. So we are going to locate this value. This is ILOC. For this value you are going to write category 1.9, जिसकी 1.9 कैटेगरी है उसको, और वर्जन जिसका है is null. I'm going to remove that data set, and finally I'm going to check this one. Now this 10,472 removed and 4453 और 4490 जो है remaining हुआ is null. We have इनपुट डेटागरी का जो है वो 1 है और एंड्रॉइड वर्जन का इज नल है। ये डेटा सेट को मैंने क्या करा, रिमूव कर दिया फ्रॉम माय गिवन वैल्यू। Now, as far as Android version is concerned, we have all these count value and we are going to fill NA with mod. So what is mod? Anyone? It's a statistic term. In statistic, the number of occurrence of most often, सबसे ज्यादा आपके डेटा सेट में कौन सा वैल्यू आ रहा है, दैट्स अ मॉड। तो एंड्रॉइड वर्जन में जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है वो क्या है, 4.1 एंड अप। तो जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है आप उसको 4.1 एंड अप से रिप्लेस कर रहे हो। दिस इज व्हाट दिस fill NA, fill NA means you are filling this data set. NA stand for not available, fill मतलब fill करो। किससे फिल करो, इनपुट डॉट मॉड जीरो, मतलब कि मॉड जीरो मतलब ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है, पहला वाला ही, इसलिए इन्होंने मॉड जीरो लिखा है। अगर ये कोई दूसरा तीसरा होता तो ये 1 और 2 लिखते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? So rather than skipping that null values, you are replacing that value with the highest occurrence of that column. मतलब कि आपके डेटा सेट में सबसे ज्यादा मेल है और फीमेल बहुत कम है, और आपके पास में कहीं कहीं डेटा मिसिंग है, तो आप क्या कर रहे हो, मेल से उसको रिप्लेस कर रहे हो, फीमेल से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका जो मॉड है वो मेल को लेके जाएगा, फीमेल को लेके नहीं जाएगा। समझ आ गया? तो दिस इज दी अनदर सॉल्यूशन कि अगर हम डेटा को पूरा का पूरा डिलीट नहीं करते हैं, सिर्फ हम रिप्लेस करते हैं और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन। नाउ you can see the change, this one you will find this value though. So 17, here we have 16, now we have these values, right? Now you can see this is the example where we have creating this data set NaN और fill NA डॉट मीन मतलब उसके एवरेज वैल्यू से आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो इनिशियली देखो ये बी में पहला वैल्यू NaN था, सी में ये वैल्यू NaN, ई के लास्ट में NaN मतलब नॉट अवेलेबल। तो जैसे ही आपने लिखा df डॉट fill NA df डॉट मीन, मतलब कि इसके कॉलम की जो एवरेज वैल्यू होगी 1 + 2 + 4 + 5, 5 और 9 10 11 12 डिवाइड बाई 5, राइट, डिवाइड बाई 4, तो उससे इसने क्या कर दिया, 3.0 से वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? राइट, ये बहुत जगह आगे रिपीट होगा कि जब कभी भी डेटा अवेलेबल नहीं है आपके पास में तो आप उससे कैसे फिल करोगे। नाउ गो बैक हियर, सपोज आपके पास में ये डेटा सेट है, राइट? अब इस डेटा सेट में मान लीजिए ये वाला डेटा सेट है, ये वाला डेटा सेट है, ये वाला गूगल प्ले स्टोर का। अब इसमें आप देखो कि बहुत सारी रेटिंग्स में आपके पास नल वैल्यूज है। लेट्स से आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस नल वैल्यू एंड ओके। कैन यू सी, ये सारा नल वैल्यू है जिसमें हमारे पास रेटिंग अवेलेबल नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हाउ वुड यू रिप्लेस दिस वैल्यू? आप इसको किससे रिप्लेस करोगे? तो यू डोंट हैव एनी सर्टेन रूल कि हम इसको रिप्लेस किससे करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So when you are choosing Python as a scripting code, which will give automatically the mean value और highest frequency जो मोड का ऑपरेटर है उससे वो डायरेक्टली क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और एक जस्टिफाई स्टेटमेंट देगा कि मैंने उसकी मीन वैल्यू से रिप्लेस किया।
राइट। नाउ आई एम गोइंग टू चेक एंड्रॉइड वर्जन, कोई भी अब अवेलेबल नहीं है। और प्राइस के लिए मैं देखता हूँ। अब प्राइस में देखो सब में पहले डॉलर लिखा हुआ है, तो डॉलर मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, राइट। देखता हूँ इसमें प्राइस में क्या है। प्राइस, हाँ, ये देखो है। तो ये वाला जो कॉलम है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कैन यू सी एरर? ये एरर क्यों है? क्योंकि ये $9.9 समथिंग है। ये $9.9 का जो सिंबल है, ये डॉलर मेरे लिए एरर शो कर रहा है पावर बीआई में भी, और यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, एक लैम्डा फंक्शन लगाऊंगा x0 वेयर x इज इक्वल टू 0 एल्स 1। 1 ऑनवर्ड्स मतलब इसका इंडेक्स नंबर जो है, ये जो 0 है इसके आगे की सारी वैल्यू ले लो, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 से आगे की वैल्यू, और 0 को हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो इट्स गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज फंक्शन and you are going to convert this value as it is. One price error आ गई हो। Very one एक है I think. Okay, I'll see. So here we have lambda function. I hope you understand lambda function, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are going to replace this one. I'll check that review. Have review. Okay. मुझे लग रहा है ये फाइल have describe head। तो हेड में हमारे पास क्या है, कॉमा है, प्लस साइन है। कॉमा को ये रिप्लेस करेगा। कैन यू सी दिस रिप्लेस फंक्शन विल रिप्लेस कॉमा विद दी नथिंग। अगर आप स्पेस दे दोगे तो यहाँ ऐसा हो जाएगा 50 स्पेस 1000, और आप कॉमा दोगे तो वो क्या करेगा, कुछ नथिंग से भी रिप्लेस कर देगा। और प्लस ऑपरेटर को भी नथिंग से रिप्लेस करना है। दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग दिस, एंड वी आर डिप्लॉइंग कन्वर्टिंग दिस कोड विद टी प्लस। कैन यू सी, टी कॉमा 3000 प्लस जो है वो 3000 में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रिप्लेस किया है कॉमा को, जितने भी कॉमा उस स्ट्रिंग में हैं, जैसे 5 मिलियन कॉमा 10,000 कॉमा 1000 कॉमा 1000 कॉमा 100, तो वो जितने भी कॉमा होंगे सब नल नथिंग से रिप्लेस हो जाएंगे। और रिप्लेस मतलब प्लस ऑपरेटर विल रिप्लेस बाई अगेन, जिसको लास्ट में प्लस लिखा हुआ है। तो ये प्योरली 3000 आ गया ताकि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकें। अब जैसे मैं, आप देखो कि यहाँ पे 3000 प्लस लिखा हुआ है, 3000 प्लस कट सी, और मैंने यहाँ पे 3000 प्लस लिखा, राइट। अब मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 10,000, राइट। अब मैंने इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करी, तो ये एक एरर दिखाई दे रहा है। क्यों? Why this it's showing error, invalid syntax? Because of that comma, sir. Yes, that's okay. Let me remove this comma now. Is it fine now? Going to show again invalid syntax. Why? No, sir. Plus, The sign is repeated. So let me remove this. Finally, I'll get this 10,000, 3,000. That will be the actual fundamental mathematical operation. तो वो मैं replace function से कर रहा हूँ। You can do the same in Python also. आप इसमें भी कर सकते हो। But we have this installation, right? तो इंस्टॉल में हमें अगेन 10,000 है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, इसके शेप से रिप्लेस कर देंगे, वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे।
राइट। और जो भी इंस्टॉलेशन है उनका, जिनका इंस्टॉलेशन मान लीजिए बड़ा है रिव्यू से, मान लीजिए रिव्यू का इंस्टॉलेशन बड़ा मतलब ऐसे लोगों ने रिव्यू कर दिया जिन्होंने इंस्टॉल ही नहीं करा अपने पीसी या अपने एंड्रॉइड ऐप में, आईओएस में। मतलब आप मेरी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, मुझे रिव्यू दे रहे हो। डज इट मेक सेंस टू यू? You cannot connect your dots until unless you are using or utilizing that app, or you are analyzing the operations of the given syntax. तो आप ऐसे लोगों को चेक कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो रेटिंग्स रिव्यू ग्रेटर देन किसका है, ये राइट। इंस्टॉलेशन जो है वो इंस्टॉल दिस वन, यस गुड। हाँ, इंस्टॉलेशन जिसका इनसे ज्यादा है, राइट। इंस्टॉलेशन ज्यादा है और रिव्यू जो है कम है। रिव्यू 149 और installation 10,000, right? Now we have all these value here. Otherwise we will check जो भी यहाँ पर रिव्यू वैल्यू ज्यादा होगी और इंस्टॉलेशन कम होगा। So this is all good. Here we have check the values. No. Now एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपने मेंशन तो कर दिया फ्री, लेकिन आप प्राइस में कुछ वैल्यू दे रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये भी इनकरेक्ट इनलॉजिकल डेटा सेट में आएगा कि आप पहले बोल रहे हो कि भाई मेरे जो लेक्चर की कोई फीस नहीं है, फिर आप बोल रहे हो अच्छा रजिस्ट्रेशन के लिए 500 लगेगा। तो दैट्स एम्बिग्यूटी हियर। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऐप में भी। तो ये वो वाला डेटा सेट देख रहे हैं। फॉर्चुनेटली दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ डेटा सेट। तो आउटलायर्स अगेन दे आर चेकिंग यूजिंग आउटलायर्स, so they are creating shows and not thing. So I'm not going to deep dive to the this outliers. So you can see respective terms. So इतना अभी रिक्वायरमेंट नहीं होता है आउटलेट्स का, बट एज ऑफ नाउ यहाँ तक आपने अगर समझ लिया तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर वैल्यू। डू वी हैव एनी डाउट टिल नाउ regarding this Android app pre-processing and all? सर Yes. तो प्री प्रोसेसिंग हो गई है, उसके बाद में पावर बीआई में इंपोर्ट करने के बाद अगर कहीं लगता है कि फिर से मतलब कुछ चेंजेस करना है पाइथन स्क्रिप्ट में, तो वो चेंजेस करके फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा पावर बीआई में यस या फिर? अभी करंटली आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, मतलब कि ये चीज आप जैसे पता है क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर आपके सिस्टम पे कोई फाइल है एक्सेल की शीट, और मेरे सिस्टम पे मैं अपनी एक्सेल की शीट अपडेट कर रहा हूँ। तो माय क्वेश्चन टू यू कि हम जैसे आप अपडेट कर रहे हो उसको और मेरे सिस्टम पे भी वो अपडेट है, वो कैसे हो जाएगा, कैसे होगा? नॉट पॉसिबल नॉट वो। पॉसिबल ना? यस सर। नॉट पॉसिबल नहीं। हाँ, जैसे मान लो यही गूगल प्ले स्टोर का मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप इसमें कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ अपना दिमाग लगा रहे हो, कुछ अपना प्री प्रोसेसिंग देख रहे हो, ठीक है। मैंने इसको आइडली छोड़ दिया, मैंने आपको ये टास्क दिया हुआ है। नाउ आफ्टर 2 days आई एम आस्किंग फॉर दी अपडेशन। तो हाउ वुड यू कम्युनिकेट टू मी कि सर ये वाली फाइल है? यू विल सेंड मी बाय ईमेल एंड आई विल कॉपी इन माई लोकल मशीन, यही तो करूंगा। यस सर। सेम यहाँ पर अभी अभी ऐसा ही है। लेकिन अगर मेरा और आपका कंप्यूटर लैपटॉप वर्चुअल सर्वर से, जिसको हम क्लाउड बोलते हैं, इसीलिए क्लाउड आज की डेट में आप सुन रहे होंगे इतना इतना पॉपुलर है। क्यों है पॉपुलर क्लाउड? इसीलिए ही है क्योंकि आप अपने घर पे जो भी काम कर रहे हो, कल को ऑफिस में जाओगे तो वो सारा का सारा आपका घर का जो लैपटॉप है ना, उसका सारा का सारा काम आपके ऑफिस में भी दिखाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्लाउड कर सकता है सॉल्व। इसीलिए क्लाउड पिक्चर में आया है और आज की डेट में बहुत बूमिंग है, क्योंकि आपको वो जो कॉपी पेस्ट जैसे पेन ड्राइव में लेके जाना पड़ता है या आपको सीडी में या किसी ड्राइव पे डालना पड़ता है, एक और सॉल्यूशन और भी है, हम ड्राइव पे कर सकते हैं काम, राइट। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाली शीट जो भी है एक्सेल की, मैं ड्राइव पे डाल दूँ,
और ड्राइव पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपको भी मैं उसका एक्सेस दे दूँ, वो कर सकता हूँ, और ड्राइव से मैं ये डेटा फैच करके लाऊं। सर सीक्वल से हो सकता है ना? हाँ, सिक्वल सर्वर से भी हो सकता है, दैट्स ऑल्सो गुड सोल्यूशन, बट सिक्वल में आपको फिर से उसकी पाइपलाइन क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। राइट। जस्ट वेट। हाँ, लेट मी क्रिएट वन अनदर कोड, लाइक यहाँ पर हमने एक अपना चार्ट बनाया, क्या है, राइट, यहाँ पे एक चार्ट बना दिया, राइट, और तो हमने पैन कर दिया, राइट, हाइट इस बराबर दी, और इसका इट इज, हाँ, हैविंग चार्ट ऑल्स, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, दिस टाइम लाइन चार्ट, जो भी लास्ट अपडेट है, और जो कब कब अपडेट, फिर राइट, नाउ पिंग वन बॉक्स, कट बटन, एरो, लेफ्ट एरो, एक्शन, पेज, call it a home page, right? Now I'm having app rating wise, right? इस सारे ऐप की रेटिंग वाइज, और पेज बनाता हूँ, जिसका वाले जो वर्जन है काला रखता हूँ, टाइप, राइट, और इस पे मैं यहाँ पर ऐप रेटिंग आता हूँ, इसके परफॉर्म करने पे जैसे ही मैंने इस पे, it will go to the type and page navigate, it will home page, right? Similarly, I'll insert a button, right, and this right arrow will right. Here I'll have action, page navigation. Inside this page navigation, I'll write type
right? I'll keep one button here. Button will like link. So along with this link, going to style text Google Play Store. तो इस प्ले स्टोर का प्ले स्टोर और प्ले स्टोर पे क्या करा, आई गो ऑन ऑन पे वेब यूआरएल पे within the web URL I'm tab URL. So I'll go to the part. ये प्ले स्टोर का मैंने URL दे दिया वहां, this one, right? Now the moment you will click on this one, you will have this website open. This website will open, right? This is called web URL. समझ में आ रहा है ना आप लोग को? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I'm having x-axis or the URL property effects count title height fill order ones y-axis title height use height, right? Title, right? Now to paste home format painter one, right? Format painter one, format painter one, format, right? To formatting curl facts one, here format painter one, here
Anything else we can add here? एक चीज हम स्लाइसर Slicer. यस wonderful क्या liking slicer. So I'm going to add one slicer here. Along with this slicer, I'm going to add category. Right? Category B slicer here. Selecting this. It here, here, here. Right? Now you can see this slicer will drop down and will have beauty. You are selecting this beauty, it will, or you have books and novels, so it will change perspective. Right? So I'm going to put app type wise here and going to replace some formality. Right? A chart or yes. सर हम पाइथन स्क्रिप्ट भी इसमें ये कर सकते हैं, कनेक्ट Yeah, कर सकते हैं। श्योर यहाँ पे देखो आप पाइथन विजुअल का ऑप्शन है यहाँ पे. राइट? एक पाइथन विजुअल का यहाँ से ऑप्शन आता है और इनेबल आप करोगे तो पाइथन विजुअल इनेबल हो जाएगा. राइट? वहाँ से ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप पाइथन हो. और एक और तरीका है कि जैसे आपने गेट डेटा पे ऑप्शन क्लिक किया, मोर पे आप जाओ, मोर पे आपको यहाँ पे मिलेगा, यू विल फाइंड, यू टाइप पाइथन, कैन यू सी पाइथन स्क्रिप्ट इज, और यू कैन इंपोर्ट आर लैंग्वेज ऑल्सो. आर आर स्क्रिप्ट, कैन यू सी आर स्क्रिप्ट एंड पाइथन. You can write Python script on a local Python installation too. आपका लोकल पाइथन स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन होना चाहिए, आर स्क्रिप्ट होना चाहिए, इंपोर्ट डेटा फ्रेम होना चाहिए, सो इट विल रन सक्सेसफुली, और आर स्क्रिप्ट एंड पाइथन will use. Right? Right? So this is navigating to the action, not home page but app read. Right? One rather I, right? So here is home page, can insert something, and here is the app, like first values. I'm going to click this one, it's paste, or you can insert some text here. Home page for Google Play Store Analytics. Select the bold, right? Then large. Right? So when I'm going to click on this one, so it's going to navigate to the right page also by clicking on this. Second, app type wise or app rating. If I going to Google Play Store button, so it's opening my website. Right? ये website का open कर, or I'll choose respective category. It will
automatic values and going that. So do we have any query? I'm going to store browser export Power BI state. Oh, not Power BI. Save as desktop. गूगल प्ले स्टोर Yes. Store and now if you get data set, जैसे SQL सर्वर से डेटा सेट लाना है तो जैसे SQL सर्वर पे लाए, राइट। अब SQL सर्वर पे ये जैसे ही आएगा आपसे सर्वर का नेम पूछे, राइट। और सर्वर का नेम जैसे आपने जो भी अपना दे दिया, जैसे कि ये सर्वर ये है, राइट। तो एडवांस ऑप्शन आप अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको जैसे ही ये सर्वर की क्वेरी आएगी ये ऐसा आपको दे देगा। अब आपको यूजर नेम डालना है तो आप अपना ऑल्टरनेट यूजर नेम क्रिएट, राइट। अब आपने यहाँ पे अपना नेम और पासवर्ड जैसे ही दिया सर्वर कनेक्शन का तो ये अपना पासवर्ड करके देगा और यूज माई करंट इन गो फॉर दी करंट क्रेडेंशियल्स। एंड ये आपके SQL सर्वर से सारा डेटा फैच करके यहाँ पे लेके आएगा और आपके डेटाबेस को कनेक्ट करके रखेगा इस पावर BI के साथ में। So it's going to take time to connect this Power BI. So I'm going to cancel it out. You can try it at your home, right? So I'm going to upload this file up. Repository. Repository. पहले हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट पावर BI सोल्यूशन यहाँ पे रखा था, राइट। अभी मैं यहाँ पे फाइल अपलोड फाइल्स टॉप एट दिस। नाउ आप लोग अपना नेम चैट बॉक्स में लिखो 1 by 1 टॉप फाइल्स। प्रोजेक्ट फाइल्स में मैं क्या करता हूँ, आपको डेटा सेट देते मैंने सर यही गूगल प्ले स्टोर का डेटा सेट अगर दिया तो वो ज़्यादा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। आपकी चॉइस है, मैं आपको दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए करो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वही जो कोडिंग है ना पाइथन की, वही कोडिंग आप दूसरे डेटा सेट पे लगाओ, ओके राइट। ताकि आप मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सको कि वो क्या, आप अपने थोड़ा सा टाइम ले लो गूगल स्टोर पे, यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। बट आप जो प्रैक्टिस करो ना वो किसी दूसरे पे ही करो, नए डेटा सेट पे। तभी वो आपका नोवाइज वर्क माना जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने कोई एक और काम किया है। ओके 1 सेकेंड। टाइटैनिक। तो ये टाइटैनिक का एक डेटा सेट में देता
सिटी, कंट्रीज, मैं ऐसा डेटा सेट देख रहा हूँ जिसमें कि कॉलम्स एंड रोज ज़्यादा हो, बहुत ही रियलिस्टिक लगे यहाँ पर। ये काफ़ी और मैं देता राइट। अब आप लोग बताओ अपना नाम, वतन, की, और क्या की, कॉमिक्स, नाउ, जब, कंट्री। एक जो और फोर्थ वन है उनका क्या नाम है? हाँ सर, मिकेश पाटिल। NIKESH। आगे? I have sent on chat box. ओके। All right. So I'm going to upload all these 4 files in the same GitHub. Download. Project files, सारी फाइल्स आपके लिए। सर ये पब्लिक रिपोजिटरी है ना? हाँ, आप लोग भी अपने गिटहब प्रोफाइल बनाओ सब लोग, हाँ ताकि मेरी। हाँ, ताकि जो ये रिपोर्टिंग आप बना रहे हो ना, ये रिपोर्टिंग बना के वहां डालो ताकि पब्लिक देखे। लिंक्डइन पे अपलोड करो, लिंक्डइन पे इमेज डालो जैसे मैंने पे डाले हुए हैं। ओके। राइट, और उस पे करो, अपने रिज्यूमे में ऐड करो कि मैंने ये डेटा प्री प्रोसेसिंग करी है और मैंने ये डैशबोर्ड बनाया है, इस पे एनालिटिक्स करी है मैंने, इस पे मैंने ओके। स्टैटिक्स के टर्म्स लगाए हैं, इस पे मैंने मशीन लर्निंग लगाया है, इस पे मैंने ओके। डीप लर्निंग लगाया है। तब आपका वो पूरा प्रोजेक्ट माना जाएगा। आप कंपनी भी आपको बोलेगी कि हाँ तुमने काम किया। तो मैंने गूगल प्ले स्टोर का जो पाइथन का स्क्रिप्ट है वो भी इसी स्टोर में डाल दिया है। ओके सर। राइट, commit changes will have all these files by your name. I'm going to share this link एंड again. गूगल Yes, का जो एक्सेल सीएसवी शीट है वो भी चाहिए थी सर। नहीं, वो जो आपके उसमें है ना, जो पावर बीआई का जो वो आएगा उसमें होगी वो। ओके। और अगर नहीं है फिर भी मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आप जब पावर बीआई की फाइल डाउनलोड करोगे ना तो उसमें वो आपको मिलेगी उसके डेटा के। फिल आई एम गोइंग टू अपलोड।
हाँ, अगर आप पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहे हो तब तो आपको जरूरत, क्योंकि पाइथन की स्क्रिप्ट में नहीं होगा। कैन यू सी? Okay, anything else I can help you out? So in the next section, I'll see each one of your dashboard, pre-processing, उसमें कोई null values नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई error नहीं है। एटलीस्ट आप सारे ये स्टेप करो अपने डेटा के लिए। हैंडलिंग एंड क्लीनिंग पार्ट करो, का नल वैल्यूज देखो, उसको मीन से रिप्लेस करो, उसको मैक्स मॉड से रिप्लेस करो, तो एवरेज को मैक्सिमम मिनिमम से रिप्लेस करो, राइट? वो करने के बाद में एक्सपोर्ट कर दो CSV में, तब उसको आप पावर BI पे लेके जाओ और फिर उसके बाद में आप उसको एनालिटिक्स करके डिजाइनिंग करो और फिर अपने गिटहब पे अपलोड करो।